Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. Hari Om Sai Ram. Since Uncle Ji has requested me not to reveal my identity, I would not do so and would just like to give you all a gist about myself. I'm 19 years old and I'm currently pursuing my engineering. 7 to 8 years back, I was introduced to Uncle Ji through my parents. I did not develop a liking towards the upais and pujas that Uncle Ji used to suggest to do. One of them was the Amavasya Puja. I used to attend the puja due to the constant persuasion and also the forcing of my parents. I had no interest in the puja and just used to sit there just to make my family members happy. But as years and months progressed, I was able to understand the actual meaning of the puja and the objective of the puja, which made me develop an interest and liking towards the puja, and if you also may say a connection towards the puja. Now I have started taking small duties which help in organizing and executing the puja. I was an average student in school. I had no focus or no plan on what to do ahead. With the help of Uncle G's guidance, I was able to attain a decent score in 10th grade. In 11th grade, I lost track and had no hope of doing well in 12th, or even if you can say pass the exam. But again, due to Uncle G's timely guidance, I was able to score a decent score in 12th, which has also landed me in a good reputed engineering college today. I was interested in aeronauticals since 10th, but after I passed out 12th, my family members had persuaded me to take the computer science course. I had lost hopes when I took that course as I thought that computer science was not my piece of cake and I really thought that I wouldn't be able to do anything with it. But again, because of Uncle G's timely guidance and his help and motivation to make me go ahead, today I am able to excel in college and I am doing very well. This puja has not only helped me educationally but also helped me develop on a personal level. I can see a lot of changes in my own behavior. I've started to become a little more calm. I'm able to distinguish between what's right, what's wrong, and decision making is no more a headache. I feel that I'm able to connect to myself even better than I used to before. I'm understanding what's right for me and what's wrong, and I'm putting myself first. I hope my experience helps you to give an idea on how this puja and how Uncle Ji has helped to change my life. I really hope I really hope that it helps you the same way, and I hope with Uncle Ji's guidance and with the blessings of our ancestors, you all of you can also do the same. Hari Om Sai Ram. Hari Om Sai Ram. As per Uncle Ji's request, I'm not revealing my identity. I have known Uncle Ji for the past 7 to 8 years. He was introduced to my mother by another Astro family. What I was a decade ago and what I am today are two different people, for which I'm very thankful to Uncle Ji. My mother, who was very upset with my behavior and worried about my future, after trying everything she could, she finally decided to make me meet an astrologer. We had a huge argument like every other day. I then finally decided to meet Uncle Ji just once for the sake of it. But minutes after talking to Uncle Ji, I realized he's not just any astrologer. He spoke to me like a friend, scolded me like a father, and guided me like a guru. He suggested a few upais, and one of them was the Amavatsya ki puja. This puja was to be done monthly once. There are a lot of benefits of Amavatsya puja. Performing this puja resolves all the dilemmas and brings motivation and zeal into a person's life. It also helps one get free from all the negative powers and evil eye. It is a way to reduce the effects of evil sources. With my ancestors' blessings, Baba's blessings, elders' blessings, and my Guru, Uncle Ji's blessings, we have been doing Amavatsya Puja
successfully for years now. I could see the positive impacts of this ritual in my and my family's life during the course of these years. From being an atheist, hot headed, stubborn person that I was before, I am now a very calm person. I have immense faith in Sai Baba and I trust Uncle Ji blindly. Like what Uncle Ji used to tell me, in life we can't solve all problems. Life is full of ups and downs. But with Uncle Ji's guidance and upays, we can reduce the impact or in some cases avoid it. It is very important to have our ancestors' blessings, elders' blessings to live a peaceful and happy life. I see this monthly once puja as a way to thank my ancestors for what I am today, for what I have today, and to continue further with their blessings. There have been several miracles in my life since I have met Uncle Ji. Let me give you a few examples. My performance in academics was really poor. Passing a semester seemed close to impossible. And one reason for that was also the kind of friends I had and the kind of people I had surrounded myself with. With continuous Uncle Ji's efforts, guidance, and regular Amavatsya Puja, I gradually started to focus more on studies and got a degree with a good score, and ever since then there was no looking back. Another instance would be I always wanted to study abroad, and that seemed like a very far-fetched dream for me and my family. But Uncle Ji's efforts, upays, things just started to favor me in every way possible, and what seemed like a dream, I was able to achieve it. With Baba's blessings, my ancestors' blessings, I have Uncle Ji in my life today. Words are not enough to thank him for what he has done for me and my family. I have seen him put selfless efforts for helping others. He prioritizes others' problems over his health. I know when he says certain things, it does not make sense. But trust me, in future, it will all come together. Even though I'm in a different country today, and it is hard for me to do the Amavatsya Puja, I still try to chant the mantra that day every month. I try to follow all the upays, and I get Uncle Ji's guidance regularly. With Baba's blessings, Uncle Ji's guidance, and parents' support, do the Amavatsya Puja and you will see the positivity it brings in you and your life. Hari Om Sai Ram. हरि ओम साई राम। मैं ये वीडियो अमावस्या पूजा कैसे करनी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आप मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे क्योंकि जो हमारे गुरु जी हैं उन्होंने हमें अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखने को बोला है, तो इसलिए आप को मैं विधि पूर्वक कैसे ये अमावस्या पूजा करनी है वो उसके बारे में बताता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट मैंने सारी एक्सप्लेनेशन एक डॉक्यूमेंट में लिख के दी है जो आप सबको मिलेगी। आप उसको पढ़ोगे और पूरा प्रोसेस और जो पूरी पूजा है उसका फ्लो आप जान जाओगे। पर फिर भी मैंने सोचा कि कुछ लोग जो पहली बार इसको करने वाले हैं उनके लिए शायद कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर दूं कि एटलीस्ट वो इस पूजा को एक डेमो के तौर पे होते हुए देखें, तो जो भी कुछ उनमें कन्फ्यूजन होगा वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जो भी कुछ मैं बोलने वाला हूँ ये सब कुछ मैंने उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ पढ़ने में और देखा हुआ समझने में थोड़ा फ़र्क हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि डॉक्यूमेंट के साथ मैं एक छोटा सा वीडियो भी आपको दिखाता चलूँ। सो सबसे पहले जैसे मैंने कहा हरि ओम साई राम, ये नाम लेने के बाद हम शुरू करेंगे। वन बाय वन पहले मैं जो पूजा की वस्तुएं हैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, और ये सब चीज़ें मैंने हालांकि डॉक्यूमेंट में लिखी हुई। सो लेट्स सी, सबसे पहले ये हमारी हवन सामग्री है। ये आपको आराम से बाज़ार से मिल जाती है, और अगर आप पतंजलि स्टोर में भी जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगी आपको। ये आम की लकड़ियाँ हैं, ये गाय का शुद्ध घी, और ये गाय के गोबर के उपले हैं,
ये कपूर इसलिए कि कभी कभार अगर आपको आग बुझती हुई नज़र आए तो आप इसमें थोड़ा कपूर डाल सकते हैं, या आग आपने शुरू करनी है तो उसके लिए भी कपूर काम आएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ये है हल्दी की माला। ये हल्दी की माला पूरी गांठ की माला है। ये जो एक टिपिकल बाज़ार से जो नॉर्मल पूजा करने वाली माला है वो नहीं है। ये आप खुद बनवा सकते हैं। आप बाज़ार से ये हल्दी की गांठ खरीदें। सिर्फ ये देखें कि सारी गांठ जो है एक ही साइज़ की हो ताकि माला बनने में आसान रहे। और इनको 108 माला में पिरो के और एक पॉइंट जहाँ से हमें पता लगे कि हाँ मैंने 100 बार मंत्र जप कर लिया है वो इस पे लगाइए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि क्योंकि हम ये माला चाहते हैं कि एटलीस्ट 13 अमावस्या तो चले, तो इसलिए इसको आप ज़रूर पहले तेल में डिबो के रखें ताकि इसमें कोई घुन या कोई कीड़ा ना लगे। क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब इसको कुन या कीड़ा लग जाता है तो यूजुअली ये जो हल्दी है उसकी गांठ टूट जाती है, और टूटने से फिर नई माला बनवानी पड़ती है और ये पुरानी माला को हम जल प्रवाह कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको सब चीज़ें बाज़ार में जल्दी से मिल जाएंगी, बट इस चीज़ का आपको अरेंजमेंट पहले करना पड़ेगा। यूजुअली जो लोग माला बनाते हैं, फूल की माला बनाते हैं, अगर आप उनको ये 108 या 100-200 जितने भी आप गांठ अगर दे देंगे तो वो जल्दी से आपको माला बना के दे देंगे। इसके अलावा हमको हल्दी भी चाहिए होगी। ये हल्दी की गांठ है, और अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 चाहिए, 8 हैं तो 8 चाहिए। अल्टीमेटली हर एक फैमिली मेम्बर के पास एक अपनी माला, एक हल्दी की गांठ होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेरी हल्दी की माला है जो मैं शायद लास्ट 2-3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने पीले कपड़े में बांध के रखा हुआ है। तो जब आप पहली बारी शुरू करेंगे सारे, ये गांठ आपकी अपनी हो जाएगी और इसको आप एक पीले कपड़े में बांध के अपने पास रख लीजिए। ये ध्यान में रखें कि मेरी जो गांठ है वो किसी और के पास न चले जाए या आपके किसी दूसरे मेंबर के पास न चले जाए। और ये हमेशा पूजा के समय मैंने निकालती हैं। पूजा करने के बाद इसको अपने पर्स, बैग, ऑफिस बैग, जहाँ भी सुरक्षित रखनी है, जहाँ भी मैं जाता हूँ ये मेरे साथ हमेशा रहेगी। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, हल्दी की गांठ और हल्दी की माला। फिर आते हैं हम पात्रम की तरफ। ये है मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर हम पूरा हवन करेंगे, जिसके अंदर हम आहुति देंगे। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो पात्रम है या ये जो बर्तन है ये भी कम से कम 13 अमावस्या तो जरूर चले। 13 अमावस्या का मैं बार बार इसलिए व्याख्यान कर रहा हूँ क्योंकि जो हमें गुरुजी ने सिखाया या हमें बताया कि जब तक ये पूजा हम कम से कम 13 बार ना कर ले, इसका जो बेनिफिट है वो हमें दिखना शुरू हो जाता है। हालांकि शुरुआत करने से ही हमें फ़र्क महसूस होता है, बट 13 अमावस्या की पूजा करने से पक्का शर्तिया गारंटेड आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई बदलाव नज़र आएगा। फिर चलते हैं, ये मैंने दोनों हवन सामग्री को इसमें इकट्ठा कर लिया है। अगर क्योंकि यूजुअली अगर एक ही बर्तन में रखा हो तो अगर फैमिली मेम्बर 5, 6, 7 हैं तो मुश्किल होती है इसको उठा के आहुति देने में। तो इससे अच्छा होगा कि छोटे छोटे बर्तन में सबके पास हो ताकि एक दूसरे की तरफ झुकना ना पड़े। फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा था कि हमें जो नीडी और गरीब लोग हैं उनमें खाना वितरण करना है। तो ये खाना हम पूजा से पहले बनाएंगे, पूजा से पहले बना के रखेंगे। जितने हम खाना रखेंगे उतने ही हम पानी के बोतल उनको देने के लिए रखेंगे। और कितने पैसे इसमें रखने हैं ये भी हमने उसमें डॉक्यूमेंट में मैंने बताया था कि कितने पैसे रखने हैं, वो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। और ये पैसे जो हैं ये
बार बार बोल रहा हूँ, फिर बोलूँगा, ये सिर्फ मंदिर की हुंडी में जाएंगे, मंदिर के दान पात्र में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। बाकी जो दक्षिणा हमने खाने के साथ या पानी के साथ देनी है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो पैसे हैं ये हमेशा हमेशा याद रखें कि ये मंदिर के दान पात्र में जाएंगे। अब आते हैं एक और वस्तु है जो है नारियल। ये नारियल भी हर एक फैमिली मेंबर की गोद में होगा और उसके ऊपर सिक्का है। तो कुल मिला के ये सारी सामग्री हमको तैयार करनी है, ये सारा सामान है। अब मैं थोड़ा इसको विधि भी बता देता हूँ, क्या मंत्र बोलना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो एक छोटा सा डेमो करूँगा। अब जो घर का सबसे बड़ा आदमी है, घर का सबसे बड़ा आदमी है, जैसे अभी मैं डेमो कर रहा हूँ तो मान लीजिए कि मैं सबसे बड़ा आदमी, तो ये माला जो है हल्दी की माला, ये वही चलाएंगे जो सबसे बड़े हैं, एक नंबर। दूसरा नंबर, वो हमेशा इस डायरेक्शन में बैठेंगे, साउथ फेसिंग डायरेक्शन में जो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का वो बैठेगा। सो अब मान लीजिए मैं हूँ तो ये माला मेरे राइट हैंड में आएगी। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये मेरी हल्दी की गांठ है जो मैं कई साल से 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे लेफ्ट हैंड में रहेगी। नारियल मेरी गोद में है और ये एक सिक्का। क्योंकि जब मैं ये दोनों हाथ में जब इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं तो आहुति नहीं दे सकता, ये आप ध्यान में रखिए। तो जब पूजा शुरू होगी, सबसे पहली आहुति जो फैमिली मेंबर है सबसे बड़ा, और कैसे देनी है ये आप देखिए। ये अगर सामग्री है तो रिंग फिंगर और थंब ये दोनों लेके मैं आहुति दूंगा। तो ये इस तरह मेरे दोनों हाथ ऑक्युपाइड हैं और जो बाकी फैमिली मेंबर है, चलो अभी उनकी तरफ देखते हैं। तो उनके लेफ्ट हैंड में उनकी अपनी हल्दी की माला है, उनकी गोद में भी उनका नारियल है और पैसे हैं, पर उनका राइट हैंड फ्री है। तो वो हमेशा पहली आहुति तो मैं दे दूंगा, बाकी जितनी भी आहुति हैं वो मंत्र उच्चारण के साथ साथ वो देते रहेंगे। और जब ये माला पूरी ख़त्म हो जाए या पूरी विधि ख़त्म हो जाए तो आखिर की आहुति भी जो सबसे बड़ा फैमिली मेंबर है वो देगा। सो मेरे को पहली और आखिरी, और बाकी जितने फैमिली मेंबर हैं वो ड्यूरिंग दी पूजा आहुति देते रहेंगे। तो चलो अभी मैं एक छोटा सा डेमो करके बताता हूँ तो फिर देखेंगे। तो ये हमारा मिट्टी का बर्तन है, ये मैंने देखो सारा हाथ में सब सामान रखा है। तो आप इनमें से लकड़ियाँ जो हैं, आम की लकड़ियाँ हैं, वो आप इनको लगा सकते हैं और ज़्यादा भर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आग जलाने के लिए हमें कपूर की आवश्यकता होगी, तो ये कपूर से आप आग जला सकते हैं। और बीच में पूजा शुरू करने से पहले हम ये गाय का उपला भी इसमें रखेंगे। घी का इस्तेमाल हम टाइम टू टाइम करेंगे, जैसे जब भी पूजा चलती रहेगी। और कभी कभार अगर जैसे मैंने कहा कि अग्नि बुझ जाती है और धुआं हो जाता है तो हम दोबारा कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं अग्नि जलाने के लिए। इस अग्नि का धुआं जो होगा या शुद्ध धुआं निकलता है वो घर में जितना फैले उतना अच्छा है, हर कमरे में चला जाए बहुत अच्छा है। तो मान लीजिए ये लकड़ी में लगा बैठा हूँ और कपूर मैंने रख दिया है और अग्नि मैंने प्रज्वलित कर दी है और ये पहली आहुति मैंने ले रहा हूँ। और ओम, और ये मेरा मंत्र होगा हर बार, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवाय नमः स्वाहा। और ये मैं पहली आहुति दे दी। अब देखिए ये है माला और ये अब हम पूजा शुरू करते हैं। और अब जो बाकी आहुति है वो
फैमिली मेम्बर देंगे। तो अभी ये आप समझिए कि ये आग जल रही है और ये पूजा शुरू हो गई है। और पहला मंत्र मैं बोलना शुरू करता हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सई गुरुवे नमः स्वाहा। स्वाहा बोलते ही मैं एक हल्दी की गांठ आगे कर दूंगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः स्वाहा। इस तरह ये मंत्र का उच्चारण करते 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 एक ऐसी स्टेज आएगी जब 108 गांठ पूरी हो जाएगी। हालांकि गुरुजी ने ये कहा है कि 3, 5, 7, 9, 11 माला आप कर सकते हैं, बट जो पहली बार कर रहे हैं एटलीस्ट वो एक बार तो शुरू करें, 2 बार करें, फिर 3 बार करें। शुरू में थोड़ा मुश्किल सा लगता है, बट आने वाले टाइम में आप सब देखोगे कि ये एक बड़ी नॉर्मल सी रूटीन बन जाती है। सब लोग को अपना अपना रोल समझ आ जाता है और 1 से 2, 2 से 3, 5 माला पहुंच जाते हैं। बट एक ही ध्यान रखता है, जैसे ही ये माला ख़त्म होती है पहली, तो उसी को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, बल्कि हमको माला को रिवर्स करना है। तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। समझ लो कि ये 108 यहाँ ख़त्म हो गए। अब हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना है, बट माला को बदल के फिर हमें स्टार्ट करना है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए अगर मैं आपको बताऊं तो शायद ये समझने में थोड़ा इजी रहेगा। ध्यान रखें, जैसे ही पूजा ख़त्म होती है अपनी अपनी गांठ जो है संभाल के रखें, पीले कपड़े में रखें, अपने बैग में रखें। जब अगले महीने दोबारा शुरू होगी, दोबारा अपनी ये माला निकलेगी और ये मेरे साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ हमेशा रहेगी। ये एक चीज़ मैं मिस कर गया शुरू में, ये सब कुछ स्थापना करने से पहले हम पूरे घर की सफाई नहीं अगर कर सकते तो एटलीस्ट जिस जगह हम बैठ के पूजा करेंगे वहाँ तो सफाई करेंगे। तो यूजुअली हम कैसे सफाई करते हैं, तो एक पानी लेते हैं, हम उसमें नमक डालते हैं और गाय का मूत्र वो डालते हैं। मैंने वो डॉक्यूमेंट में वो पिक्चर डाल रखी है। उसको लेके जिस कमरे में हम पूजा करने वाले हैं उस पूरी फ्लोर को आप साफ कर सकते हैं। अब ये समझ लीजिए कि पूजा ख़त्म हो गई है। अब ये अग्नि जल रही है और अग्नि जलने के बाद जब ये हम पूरा सामान उठाएंगे तो इस अग्नि को जहाँ पे है वहीं जलने दीजिए जब तक ये ठंडी ना हो जाए। और आप देखेंगे 2, 2.5, 3 घंटे के बाद ये ऑलमोस्ट अग्नि ख़त्म हो जाती है और जो राख है वो भी थोड़ा बहुत ठंडी हो जाती है। जब ये सब ठंडी हो जाए तो इस बर्तन को एक न्यूज़पेपर के पीस के ऊपर आप इस राख को उड़ेल दीजिए और उस न्यूज़पेपर को बांध लीजिए। बांध के वो न्यूज़पेपर प्लस जितने नारियल घर में हैं सब फैमिली मेम्बर्स के, वो ले जाके एक फ्लोइंग वाटर में उनको जल प्रवाह करना है। ये सिक्के जो बच जाएंगे, ये सिक्के और जो भी हमने पैसे फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से 11 रुपये पर फैमिली मेम्बर के हिसाब से, और मैंने उस डॉक्यूमेंट में दे रखा है कि कैसे कैलकुलेट करना है। ये और सिक्के ये जाएंगे मंदिर की डोनेशन बॉक्स में। सारे नारियल प्लस राख ये हमें जल प्रवाह करनी है। ज़रूरी चीज़, कुछ गलतियां हम शुरू में करते रहे हैं हम एज ए फैमिली। राख को अखबार में तो रख लिया पर 2-2 दिन हमारे घर में ही पड़ी हुई है, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। नारियल है, अरे तू दे के आ जाना, परसों तू चले जाना, तो कोई नहीं जाता, तो नारियल भी हमारे घर पे पड़े रहे। तो सबसे इतनी अच्छी अगर हमने पूजा की है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल और राख उसी दिन ले जाके हम जल प्रवाह कर दें। और ये जल प्रवाह हमें सूर्य ढलने से पहले पहले करना है, रात को जाके नहीं करना। सूर्य ढलने से
दो तीन चीज़ें और मेरे को याद आ गई। तो पहला ये कि ये जो पूजा हमने बोली है, ये सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले तक ख़त्म हो जानी चाहिए। ये भी मैंने वहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। और फिर हमें ये भी याद है कि हमें उठ के सफाई करनी है, हमें उठ के खाना बनाना है, हमें नहाना है, कपड़े बदलने हैं। तो अगर सूर्य उदय होने से पहले 1 घंटा ख़त्म होनी चाहिए तो हम बैकवर्ड चले तो हमें कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि कितने बजे उठें ताकि ये सारा काम, खाना बनाना, सफाई करना, नहा के पूजा का सामान अरेंज करके पूजा ख़त्म करनी है, वो भी 1 घंटा पहले सूर्योदय होने के। एक्सपीरियंस के साथ ये टाइमिंग छोटी होती जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं और खाना बनाना, सफाई करना, 5 माला करना। हम आज तक अभी तक सिर्फ 5 माला पे ही पहुँचे हैं। 5 माला करते हैं और 5:30 तक हमारा ये सारा कार्यक्रम ख़त्म होता है। तो अब आप देख लीजिए कि एक आदमी एक फैमिली जो एक्सपीरियंस के साथ लास्ट 6 साल से ये पूजा कर रही है, 6-7 साल से हम पूजा कर रहे हैं, हमें भी कम से कम 2.5 घंटे लग जाते हैं। एक और चीज़ मैंने लिखी है, सपोज़ कोई फैमिली मेम्बर सारे इकट्ठे हों तो बड़ी अच्छी बात है, बट अगर कोई मिस हो जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। एक फैमिली मेम्बर भी हो, 2 मेंबर भी हो घर में, तो ये पूजा की जा सकती है। बट एक बार शुरू की हुई पूजा हमें ये ध्यान लगा के रखना है कि मिस ना हो। बाकी बाबा जी की कृपा है, जब हम इसमें शुरू होंगे तो ऐसे हालात बनेंगे कि कभी भी ये मिस नहीं होगी। कई इंस्टांसेस आए हैं कि जब मेरे को 6 बजे फ़्लाइट भी पकड़नी है, फिर भी हम उस दिन 3 बजे ना उठ के 2:30 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं। बट लास्ट 7 साल में, 6-7 साल में मुझे नहीं लगता कि हमसे कोई कभी मिस नहीं हुई। अगर मुझे जाना भी पड़ गया या नहीं मैं आ सकता तो बाकी फैमिली मेम्बर। तो मैं बाकी आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आदमी गलती 2 तरीके से करता है। एक, अगर उसे पता ना हो पर वो एक चीज़ करता जा रहा है तो वो उससे गलती होती है। बट हम भाग्यवान हैं कि हमारे साथ भैया जी हैं, वो एटलीस्ट तो हमें ये बता रहे हैं कि भाई ये गलती हो रही है, आप इसको ठीक करें। दूसरी गलती आदमी तब करता है जब उसे पता है ये गलत है पर वो फिर भी कर रहा है, तो आई थिंक ये सेकंड गलती होगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये 2 चीज़ों को सुधार लें और ये जो हमें समझाया गया है इस अमावस्या पूजा का महत्वपूर्ण पूजा का जो बेनिफिट है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत बदलाव आएंगे, बहुत बदलाव आते हैं पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, बच्चों की लाइफ में, फाइनेंशियल, काम, पीस, बहुत बेनिफिट है। तो मैं तो आपसे यही आग्रह करूँगा, बहुत अच्छा होगा आप इस लाइन में जुड़ रहे हैं, इस पूजा को करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, करिए। और बाबा जी की कृपा से और गुरु जी की डायरेक्शन से इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन में उसी तरह के बदलाव आएंगे जैसे मेरे और मेरी फैमिली के जीवन में बदलाव आए हैं। हरिओम, ओम साई राम। Hariom Sai Ram. Before I begin this video, I would just like to highlight that Jaideep uncle has asked me to hide my identity, so at any given point, you will not be seeing my face in this video. My family and I met Jaideep uncle through another Astro family member almost a decade ago, and he's been nothing short of a guiding light for us. I thank God Almighty for bringing him into our lives. I genuinely do not know where we would be without him today. As I am someone who believes in a very practical and real approach towards life, I believe his guidance has been a blessing for my family and me. And I know it's 2020 and the whole idea of astrology doesn't feel real and a lot of people don't believe in it. But
Astrology is the science of the stars, and it is based on the belief that the position of the planets and stars in the sky influence human life. What astrology has been around for longer than we've all existed, so I don't really see why we shouldn't believe in it. And the planets and stars have a very important role to play in our lives, whether we like it or not, or for the matter of fact, whether we believe in it or not. And not just in Hinduism, but in cultures across the world, believe in praying to their ancestors. Most of our lives and the lives of our loved ones around us have actually been affected by Pitra Dosh. And this is basically like an ancestral curse where we realize that our ancestors are not actually happy with us, and this has many different kinds of forms, such as delayed marriages, divorces, childbirth, having no children, no continued lineage of the family, sibling rivalry, quarrels between loved ones, business losses, and there are so many more. And the only remedy towards resolving this is by asking for forgiveness from our ancestors, and this is done by doing the Pitradosh Puja on Amavas. And it is basically a puja or a havan that is conducted before sunrise. And like we need to donate food and water to the needy and ask for forgiveness and nothing else, because this has to have no selfish motives and you have to do this wholeheartedly. Sometimes these are a little unconventional, but this is what is written in our scriptures and Vedas, and we need to respect and carry forward thousands of years of tradition and knowledge that has been imparted to us by our elders, so that we can all live a very happy and prosperous and healthy life. And it may be hard to believe in today's time, but it's not impossible if you have faith and if you trust Him and in God and in whatever you're doing, and everything is possible. Out of a personal experience last year, so I actually met with an accident where I fell face flat from a moving bus. And I know it may sound like one of those scenes that you watch in like cartoons and stuff, but it actually happened. And surprisingly, I got away with only a slight bruise. And not just me, but even my mom met with an accident where she was standing at a signal and a truck rammed into the car behind her. And the whole glass and windshield of the car shattered completely, and she got away without a scratch. Now, I genuinely believe this is our ancestral blessing, it's God's blessing, and it's all these upayas that have been saving us. And like Jaideep uncle rightly says, like what is written in your karma or in your destiny is bound to happen, but the negative effects or the bad things that are supposed to happen, by doing the upayas correctly, and the effects of those can be reduced to up to 80-85%. You have to do it with all of your heart and all of your faith. And he's always been extremely straightforward with us, and he truly believes that his prayers can never go wrong, and you have to have 100% faith in him and his prayers and the things he does, so that your life and well-being can be extremely fruitful and all your problems can be significantly reduced. He has saved me and my family from problems that were not even known to us. And honestly, at the end of the day, it's just about having faith and trusting his processes and his ways. Hari Om Sai Ram. हरि ओम साई राम। अभी एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है अमावस्या पूजा के लिए, जो आपको मिलेगा देखने के लिए। मुझे लगा कहीं मैंने 2-3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मिस कर दिए, तो इसलिए उनको भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब सारी सामग्री तैयार हो जाती है, हम पूजा शुरू करने वाले हैं, सारे फैमिली मेम्बर इकट्ठा हैं, तो हम सब लोग पूजा शुरू होने से पहले आंख बंद करके अपने पितरों का ध्यान लगाएं और उनको कहें कि हे पितरों, मैं आज अगर इस धरती पे हूँ या मेरी फैमिली इस धरती पे है, वो सब आपकी वजह से है, आप ही की देन है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहो शांत रहो, खुश रहो और अपनी जो दया दृष्टि है मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखो। आँख बंद करके हाथ जोड़ के हमेशा उनका ध्यान करें, पूरी फैमिली ध्यान करें। और ये करने के बाद हम अपनी पूजा शुरू करें। दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे ही पूजा ख़त्म होती है, फिर आँख बंद करके पितरों को ध्यान में रखते हुए हम पूरी फैमिली ये बोले, हे पितरों, जो मैंने ये पूजा की है, मैं चाहता हूँ कि आपको शांति मिले और मेरे से जो भी गलती पुरानी हुई हैं, मेरी परिवार से पुरानी गलती हुई हैं, जो मैं गलतियाँ अभी कर रहा हूँ, कृपा करके उनको माफ़ करें, मुझे अच्छा रास्ता दिखाएं
और मेरे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखें ताकि वो अपने कुल का, अपने अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। तीसरी चीज़ ये है कि ये पूजा हम पूरे महीने में एक बार करते हैं और इसमें जैसे मैंने पहले कहा 2.5-3 घंटे लगते हैं। तो अगर पूरे 30 दिन में अगर हमें सिर्फ 2.5-3 घंटे निकालने हैं पूजा के लिए, तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरे विधि भाव से, शांति से, पूरा अर्पण होके इसको करें। कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऐसा ना हो कि हम पूजा कर रहे हैं, कोई किसी को फ़ोन कर रहा है, कोई सामान उठा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई किसी को बुला रहा है। डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर ये 2.5-3 घंटे अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हम पूरे सारे कमिटेड हो, पूरे सारे शांति से हम अपने आप को अर्पण करें ताकि ये हमारी जो पूजा है ये पूरी विधि भाव से अच्छी तरह से हो। और आखिरी चीज़ जो हमने खाना गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनाया है शुरू पूजा से पहले, जब पूजा ख़त्म होती है तो हम वो खाना जो है गरीबों को और नीडी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नीडी, गरीब और नीडी। और सेकंड इज़ अननोन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अननोन नीडी आदमी को दें। कुछ लोग समय बचाने के लिए, या हम भी करते थे, हम भी शुरू में करते थे, कौन अभी जाए ढूंढने नीडी लोगों को, हम अपने ड्राइवर, सिक्योरिटी वाले, मेड को, इनको दे देते। ये ना तो नीडी है और ना ही अननोन है। और जो मैंने गुरुजी से सीखा है, जब आप एक नोन आदमी को कभी भी दान देते हो, हमेशा उस आदमी को आपकी कुछ करने के लिए एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि मैंने कुछ किया है तो उसको लगता है मैं इसके बोझ तले दब गया हूँ, तो मेरे को भी कुछ करना चाहिए। इसीलिए अननोन को खाना देना बहुत ज़रूरी है। एक बार दिया तो पता नहीं दोबारा ना मिले, ना उस पर बोझ है ना मेरे पे एक्सपेक्टेशन है। तो इसलिए बार बार एक ही आदमी को, नोन आदमी को खाना मत दीजिए। घर से बाहर निकलिए, बहुत लोग हैं जो नीडी हैं, बहुत लोग हैं जो आपको इस बार मिलेंगे, दोबारा पता नहीं मिलेंगे। रेलवे स्टेशन है, मंदिर के बाहर है, कहीं शेड में बैठे हैं, कहीं ना आप ढूंढोगे आपको जरूर मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इतना अच्छी पूजा करने के बाद अगर हम ये खाना अगर हम नोन आदमी को देंगे तो मुझे नहीं लगता ये अच्छा होगा। तो ये 3-4 पॉइंट जो मेरे से पहले मिस हो गए थे, मैंने सोचा मैं दोबारा आप सामने पेश करूँ। हरिओम साई राम। हरिओम साई राम। भैया जी से मैंने आज से 5-6 साल पहले ऑफिस के कलीग के थ्रू मिली थी। उन्होंने ही मुझे मिलाया था उनसे। उस समय मैं बहुत परेशान थी क्योंकि उस समय मेरा हस्बैंड का कंपनी बंद हो चुका था और हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से शुरू करें। तो भैया जी ने मुझे कुछ उपाय बताए और ये अमावस्या की पूजा करने के लिए कहा। पहले तो हम सोचे कि ये अमावस्या पूजा इतना सुबह उठ के करना बहुत मुश्किल है। फिर सोचा चलो करके देखते हैं। फिर हमने शुरुआत किया। उस समय मेरी बेटी भी बहुत छोटी थी, 7-8 साल की थी, पर उसने भी पूजा में बैठना आरंभ कर दिया क्योंकि मैंने उसे बताया कि आपको भी पूजा में बैठना है। अब तो वो खुशी खुशी पूजा के लिए खुद ही तैयार हो जाती है, नहा के पूरा रेडी होके पूजा में हर अमावस्या को बैठती है। फिर ऐसे होता गया कि अब हम मतलब कुछ सोच नहीं सकते हैं, ऐसा अच्छा चीज़ होते गया हमारे साथ। एक बार मेरे बेटी को स्टोन हुआ था। फिर मैं भैया जी से मिली और उनको बताया इसके बारे में। फिर उन्होंने कुछ उपाय बताया और बोला आप निष्ठा से पूजा करते जाओ अमावस्या के। फिर कुछ दिनों के बाद, जब आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 मंथ के बाद हमने स्कैन कराया और उसका स्टोन गायब हो गया। तो ये तो अनबिलीवेबल था। फिर हमें लगा कि सही है, पूजा तो हमें करना ही चाहिए। अब हम नियमित रूप से 5 से 6 साल तक ये पूजा करते आ रहे हैं। अब कुछ भी हो जाए हम पूजा नहीं टालते हैं।
चाहे हम बाहर जाए या कहीं भी रहे, हम पूजा ज़रूर करते हैं। हम ऐसे प्लान करते हैं बाहर जाने के पहले, ताकि अमावस्या का पूजा बीच में ना आए, क्योंकि अगर अमावस्या बीच में आती है, अगर हम बाहर जाते हैं तो फिर हमारा पूजा रह जाएगी। इसलिए हम उस तरह ही प्लान करते हैं कि पहले या तो अमावस्या का पूजा करके जाए या वापस उससे पहले आ जाए, ताकि अमावस्या का पूजा हम घर में कर सकें। तो ये था हमारा बेनिफिट अमावस्या पूजा का। अब तो ऐसा है कि पहले मेरे हस्बैंड मंदिर जाना पसंद नहीं करते थे, मतलब जाते थे पर उतना मतलब रेगुलर नहीं थे। अब ऐसा हुआ कि वो मेरे से भी ज़्यादा मंदिर जाने के लिए तैयार रहते हैं। हर शनिवार को और मंगलवार को ज़रूर से ज़रूर मंदिर जाते हैं। ये अमावस्या पूजा का ही फल है, मुझे लगता है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ कि आप एक बार स्टार्ट करके देखो, पहले 2-3 मंथ करके पूरी निष्ठा से अमावस्या का पूजा करो, फिर आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा। पर यह है कि आपको पूरी निष्ठा के साथ करना पड़ेगा पूजा। तो ऐसे ही आप करके 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ करके देख सकते हो। मेरे लिए तो ये बहुत ही फ़ायदाजनक था। मैं तो अपने पूरे रिलेटिव्स लोगों को भी बताती हूँ इस पूजा के बारे में कि आप करो और हमारे पितरों को याद करो, इस दिन अमावस्या का पूजा करके उनसे आशीर्वाद लो, फिर देखो सब काम अपने आप ही होता जाएगा। हरिओम।